Good evening, everyone. On behalf of Pune branch, I welcome you all on today's seminar on Gita for Professional Leading an Enjoyable and Useful Life. I welcome our speaker, C.A. Nilesh Suchak sir. I request branch chairman C. Rajesh Agarwal to kindly give the opening remarks. Good evening, friends. Good evening, today's speaker, Nilesh sir. I welcome you all for the today's session address on the topic Gita's lessons on experiences as a regular practicing CA. We have gone through last 3 days on different aspects of the profession in Gita perspective. Today, we see the perspective of a practicing chartered accountant. And we are delighted to have a speaker of the day, Nilesh Suchak sir, who has a diverse knowledge, not only in finance, but otherwise also assurance and all other services also. He has very diverse knowledge. Thank you, sir, for accepting our invitation. And I really thank Dalal sir for structuring and helping us to this program. Sir, this is a program conducted by IIM Ahmedabad also. The fees is more than 65,000 for this program. And before this, same type of program, Ahmedabad branch has also organized. In line of that, we thought it is very useful and helping to our members and students. And really thank you, sir, for your valuable time and ready to enlighten all on this topic. Thank you, sir. Thank you. It's my pleasure. Thank you, Rajesh sir. Before proceeding ahead, I will just give a brief introduction of our today's speaker. Dr. Nilesh V. Suchak is a practicing chartered accountant since 1986, and the main area of his practice is GST law. He is also an associate professor at R.J. Tibrewal Commerce College, Ahmedabad. He is awarded PhD by Gujarat University for his thesis titled Corporate Financial Reporting in India and Transparency, a Futuristic Approach in 2002. He has undertaken due diligence and investigation assignment for venture capital fund and has assisted many clients on their indirect tax related issues, compliances, reviews and litigation. He has argued many matters relating to excise, customs and service tax before CESTAT, commissioners and lower authorities. He has delivered lectures on excise, service tax and GST at various training programs organized by ICAI, ICSI, Service Tax Department, Adani University, Gujarat Chamber of Commerce and Industry, Knowledge Consortium of Gujarat, Ahmedabad Management, and many other institutions at Ahmedabad, Mumbai, Kolkata, Delhi, Pune, Hyderabad, etc. So it is a pleasure to have you with us today. Without wasting time, sir, I hand over to you and we will start with the today's seminar. So thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. I'll start with the Shanti mantra from Taittiriya Upanishad. Om Shanno Mitraha Samvarunaha Shanno Bhavat Varyama Shanna Indro Bruhaspati Shanno Vishnu Urukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Rutam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmam Avatu Tadavaktaram Avatu Avatu Mam Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. My dear listeners, we started with the Shanti mantra from Taittiriya Upanishad, which means, in every Upanishad, it starts with the Shanti mantra. And this Shanti mantra, my dear brothers and sisters, it many a times gives you the crux of what is there in the Upanishad.
Here, I'll tell you the meaning of this Shanti mantra. Om Shanno Mitra. May Sun God be blissful to us. Surya Devta Hamara Kalyan Kare. Sham Varunah. Varun Devta Hamara Kalyan Kare. Shanno Bhavat. Aryama. May Aryama be blissful to us. Shanna Indro Bruhaspati. May Indra and Bruhaspati be blissful to us. Shanno Vishnu Urukramaha. Vishal Gati Wale Vishnu Hamara Kalyan Kare. May Vishnu of long strides be blissful to us. Namo Brahmane, I bow down to Brahma. Namaste Vayu, I bow down to wind god, Vayu Devta. Tvameva Pratyaksham Brahmasi, you are the direct Brahma. Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami, I'll call you direct Brahma. Rutam Vadishyami, I'll call you righteousness. Satyam Vadishyami, I'll call you truth. Tanmam Avatu, may they all protect me. You know, the prayer by the teacher and the taught, the teacher and the student is, may they protect me. Tanmam Avatu, Avatu is protect, Hamari Raksha kare. Tadavaktaram Avatu, may they protect our speaker. Avatu Mam. Avatu Vaktaram. Again, when we are very keen, we ask for it again. Please protect me. Please protect our speaker. Om Shanti Shanti Shanti. Why do we say this 3 times? So that let there be physical, mental, spiritual, natural, all kinds of peace be there. Because when we want to study, we should be physically all right. The environment outside should also be congenial to study. And third thing, you know, the divine power also should not disturb us. So we are praying every time there was, a start of the discourse between the teacher and the student. In Upanishad, paas mein baith ke padhate hain. Oh, Upanishad mein ye prarthana, Shanti mantra jarur milega. Or whatever prayers we are, usually reciting, they are mainly from Upanishads. My dear brothers and sisters, topic for today is Gita for Professionals, leading an enjoyable and useful life. That is the main title. You know, the objective is to lead and also to live an enjoyable and useful life for the society. Enjoyment for the self and usefulness for the others. And I'm going to tell you the lessons on experiences that I had by study of Srimad Bhagavad Gita as a practicing chartered accountant. Let me tell you that Gita is a guide for every living human being. Not only a chartered accountant, not only a professional, for one and all. And I must thank the Pune branch of WIRC of ICAI for giving me this opportunity to come and share my experiences with you. I tell you that any kind of conference or a workshop or a seminar like this is a satsanga. Satsanga means to come in contact with good. It may be a good speech. It may be a good scripture. It may be a good reading. It may be a good listening, whatever it is. You know, company of good is satsanga. In Sri Ramcharitmanas, Balakand, you know, the starting point initially itself, Tulsidas Ji says, what is the importance of satsang? And he gives this importance of satsang in 3 chopais in Ramcharitmanas, my dear brothers and sisters. We all must, understand what is the importance of the satsang, and we should keep ourselves busy, at least for some time during the day for this kind of satsang. And for that purpose, in spite of being a professional institution, though you are mainly dealing with the technical subjects, this subject of satsang is also very essential. And my compliments to all the office bearers of Pune branch, including the chairman Rajesh Agrawal, under whose leadership
you're organizing such a program which is very, very essential along with the other technical programs. Tulsidas ji says in Ramcharitmanas, Mati kirti gati bhuti bhalai, jab jehi jatan jahan jehi pai, so janab satsang prabhav, lokahu bedan an upau, binu satsang विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परही, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि समनिज गुण अनुसरही, फनि मनि समनिज गुण अनुसरही. My dear listeners, this is Awadhi, or you may call it a Hindi, but still, if we know the meaning of these three chopais, it will be very useful to us, and we should keep on remembering that what is the importance of satsang according to Tulsidas Ji Maharaj. He says, Mati, Kirti, Gati, Bhuti, Bhalai. Mati is Sumati, good sense, wisdom. Kirti is name and fame. Gati is Sadgati. Bhuti is Vibhuti, Aishwarya, all kind of good sense. Kirti, Sadgati, Bhuti, Bhalai is compassion. जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, जिसने भी जहां भी जिस यत्न से जिस स्वरूप में पाया, सो जानब सतसंग प्रभु. Please not, it is only because of the satsang. Lokahu vedan आन उपाव. It means लोक में और वेद में ये सत्संग के अलावा सुमति पाने के लिए, फेम पाने के लिए, सदगति पाने के लिए, विभूति ऐश्वर्य, सब तरह के ऐश्वर्य पाने के लिए, कंपेशन भलाई पाने के लिए और कोई चारा नहीं है. That is what Tulsidas ji says. And in second chopa he says, बिनु बिनु सत्संग विवेक न होई. सत्संग के बिना विवेक नहीं आता. We will say Vivek is also dharma. Little later we'll talk about what is dharma, and we are going to learn, mainly what I have learned is our dharma. Our dharma, we will see what it is. सत्संग के बिना विवेक नहीं होता. राम कृपा बिनु सुलभन सो. ये सत्संग है, वो राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता. तुलसीदास जी को राम प्यारे थे, तो उसमें उसने हमेशा बोला है कि राम नाम का क्या महत्व है, वही उन्होंने पूरे रामचरितमानस में दिखाया. आप बोलते हैं नहीं, हमको तो चेयरमैन राजेश अग्रवाल से प्यार है, तो आप लिख दो ना यहाँ, राजेश कृपा बिनु सुलभन सोई. फिर तुलसीदास जी कहते हैं, सतसंगत मुद मंगल मूला. मुद मतलब आनंद, मंगल मतलब कल्याण. आनंद और कल्याण की जड़ है सत्संग. And therefore Pune branch deserves compliments कि ये ऐसा 3-4 सेशंस आपको with the help of the chartered accountants organize किया. ये मूड, आनंद और कल्याण की जड़ है. सोई फल सीधी सब साधन फूला. ये सत्संग ही फल है. हम लोगों को फूल से काम नहीं है, हम लोगों को फल से काम है. तो बोलते सत्संग ही फल है, बाकी जिस प्रकार से आप सत्संग पाते वो सब साधन है, वो फूल है. ठीक है, हमको फल से मतलब है. फिर तीसरी चौपाई में तुलसीदास जी बताते हैं, सठ सुधर ही सत्संगति पाई. जो सठ है, कभी दुराचारी रहा है, कभी पापाचारी रहा हूं मैं,
फिर भी मैं सत्संग अगर पा जाऊंगा तो मैं सुधर जाऊंगा। सठ सुधर ही सत्संगति पाई। कैसे? पारस परस कुधात सुहाई। जैसे पारस मणि को स्पर्श करके लोहा कुधार सुहाना सोना हो जाता है, ऐसे ही सत्संग पाके सठ भी सुधर जाता है। एंड तुलसीदास जी सेज फर्दर, विधि बस सूजन कुसंगत पर ही। सुजन मतलब सत्संग पाया हुआ इंसान कभी कुसंग में भी पड़ जाए, फनी मनी समनिज गुण अनुसर ही। वो विशेला नाग की मणि उनका गुण है प्रकाश देना। वो जहरीला सांप के साथ रोज रहता है, फिर भी मणि अपना जो गुण है प्रकाश देने का वो नहीं छोड़ता। ऐसे ही सठ है, वो कभी कुसंग में पड़ जाए फिर भी अपना जो सत्संग पाया हुआ है, जो अच्छे गुण पाए हुए, वो कभी छोड़ेंगे नहीं, वही उन्हीं का अनुसरण करेंगे, ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं। तो आप लोग जितने भी लोग यहाँ आज सुन रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र है। क्यों कि ये संयोग जो होता है वो ऐसे ही नहीं होता है। I don't know what is your financial bank balance, and I don't want to know also. But I know your spiritual bank balance. It is because of your spiritual bank balance you have found a time and you have joined this seminar on, leading an enjoyable and useful life, today organized by Pune branch of ICAI. So I congratulate all of you for being present. And let me also tell you in the beginning that if we keep this session interactive, it'll be a mutual learning. I know for sure I'm not an expert. I'm also like you all. Therefore, and I know that there would be many listeners, good listeners, knowledgeable listeners, wise listeners, who may be knowing much more than what I know. So if you share your observations, or if you have any queries, you can ask me while we are talking about. Don't wait for the last minute question and answer session. Please feel free to add, to whatever I'm saying, or whatever additional you want to add that can help, all the participants who are the divine souls who have come together today to listen on Srimad Bhagavad Gita. And Srimad Bhagavad Gita, let me tell you, friends, is a scripture which teaches us the true essence of living an enjoyable or a joyful life. And I am going to give you some keys which I have learned, and which are the keys for joyful life, which I have learned from Srimad Bhagavad Gita. And my dear brothers and sisters, there are two types of vidyas. One is a para vidya, the other is apara vidya. We are chartered accountants and we have learned the technicalities which a chartered accountant should know. There may be doctors, there may be engineers, there may be any kind of person. Whatever we are learning for earning and making our livelihood, they are all apara vidya. It is inferior. But there is another superior vidya which is called para vidya or adhyatma vidya, and which we must all, along with the apara vidya, वो भौतिक शिक्षण के साथ ये आध्यात्मिक शिक्षण है, वो बहुत जरूरी है। अगर दोनों का मिश्रण होता है, समन्वय होता है, तो हमारी लाइफ ट्रूली एंजॉयबल बनती है। खाली भौतिक विज्ञान से, खाली अपरा विद्या से, and without adhyatma vidya, without para vidya, our life will become miserable. And I have seen so many experiences where people say, "Oh, अध्यात्म विद्या को क्या करना है? कुछ नहीं." और एक बार वो आते हैं, कभी इतने फंसते हैं क्योंकि वो भौतिक के पीछे इतने दौड़ते हैं, पागल हो जाते हैं, उनको पता नहीं है कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारा जीवन का उद्देश्य है
कीर्ति प्राप्त करना। महाभारत में अगेन एंड अगेन, Vyas Narayan is Maharishi Ved Vyas, and whatever I am speaking or everybody is speaking, that is Vyas Narayan's words somewhere in some form or the other, maybe in Purans or in Mahabharata, etc. Srimad Bhagavad Gita that we are going to talk about today is also a part of Mahabharata. So we must pay attention, being the chartered accountant or the family members, all of us, along with our basic duty that we have, we must also, focus on Adhyatma Vidya. So it should go hand in hand. Only Adhyatma Vidya may not also help. Para and Apara, both combination would make us, an ideal human being. Now, what Bhagavad Gita has taught me, or it teaches to all of us, I would say it is duty, or it teaches dharma. And dharma doesn't mean Hindu Muslim religion. Dharma means duty. And all these ancient scriptures, they usually tell you in the first word and the last word of that scripture, what is the essence of this scripture. So Srimad Bhagavad Gita, if you look at the first word, there are about 700 verses in Srimad Bhagavad Gita. There are 18 chapters. First chapter starts with Dhritarashtra Uvacha. First chapter, first adhyay, first verse. It reads like this: Dharma kshetre kurukshetre samavetayu yutsavah mamaka pandavaschaiva kimakurvata sanjaya. Usme first word hai dharma. So that is dharma. And the last verse is 1878. 18वां अध्याय 78th verse. It says, उसमें संजय बोलते हैं, संजय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम mama. So the last word is mama. First word is dharma. Mama dharma, my duty. That is what Srimad Bhagavad Gita teaches. Now you may ask, what is dharma? Oh, कितने मीनिंग है, अलग अलग डेफिनेशन है. आप महाभारत पढ़ेंगे, 1 lakh verses. Mahabharata says what is here can be there elsewhere. And about Mahabharata, this is true. 1 lakh verses without expecting any royalty is a niskam karma done by Maharishi Ved Vyas. So I bow down to Maharishi Ved Vyas and start my discussion on what is dharma. The dharma, according to one meaning, means vivek or righteousness or righteous conduct. Our conduct, if it is righteous, we are doing dharma. If our conduct is not righteous, then we are doing adharma. Or dharma means vivek. Vivek means अच्छे बुरे का विवेक. हमें पता चले कि ये अच्छा है, this is to be done, this is not to be done. This is karma, this is akarma. ये करने जैसा है, करने जैसा नहीं है, ये धर्म है. तो उसमें बहुत डायलेमा रहता है कि क्या धर्म है. आप अलग अलग लोगों के पास जाएंगे, अलग शास्त्र में जाएंगे, धर्म की अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है. बट मैंने कहीं सुना है, एक करपात्री जी महाराज थे, वो बड़े ज्ञानी थे. तो लोग उनको सुनने के लिए जाते थे और बोले आज धर्म के बारे में करपात्र जी महाराज बोलने वाले हैं. तो मैंने जिनसे सुना है वो स्पीकर वहां गए कि चलो मैं आज जाके धर्म क्या है वो सुन लूं, वहां से जान लूं. तो करपात्री जी महाराज ने शुरू किया, धर्म का मतलब है खाना पीना सोना रोना डरना मरना संतान पैदा करना. अब देखिए फ्रेंड्स, खाना पीना सोना, तो पहले तो हमको लगता है यार ये धर्म है, ये क्या बोल रहे हैं करपात्री जी महाराज. खाना पीना सोना, यस. एंड देन ही सेड, खाना सबको है, पीना सबको है, सोना सबको है, रोना सबको है, डरना सबको है, मरना सबको है, संतान पैदा करना, ऐसे काफी चीजें
जो हम करते हैं वो करनी चाहिए, बट उसमें विवेक रखना। खाना क्या, खाना नहीं खाना, ये खाने वाली चीज है, ये नहीं खा सकते हैं। पीना क्या नहीं, सोना कैसे। देखिए माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, if we have done righteous conduct throughout the day, we will have a sound sleep. And if we have done all things which should not be done, we may lose, one good night's sleep. That is why Mr. Narayan Murthy says, to me, a one night sound sleep is more than $1 million. And he means it. It is not only for the sake of saying, all our Shastra says, including, the great Chanakya. Chanakya says, if you want to be happy, then the first Niti Sutra of Chanakya says, Sukhasya Moolam Dharmaha. So, basis of happiness is dharma, is ethics, ethical conduct, righteous conduct. That is dharma. So, if you want to be happy, pehle dharma karo. Yesterday's speaker, Mr. Jai Chera, I was listening to him. He was talking about dharma, artha, kama, moksha. My dear brothers and sisters, we have a theory of dharma, artha, kama, moksha. We need artha. None of our scriptures, says that you should not earn money. Earning money is absolutely welcome. एक प्यून है हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के, एक प्रेसिडेंट थे, उनके बारे में मैंने सुना था कि उनके यहां एक सेक्रेटरी थी. For 30 years, she was absolutely honest, sincere, hardworking, a woman of integrity. And she was getting salary from the chartered accountant, who was the then president. He is no more, but I have read about him. And one fine day, the chartered accountant had become very old. He called the secretary, आज मेरा will बना दीजिए, ये ड्राफ्टिंग करो, इनको इतना देना है, इनको इतना देना है. तो सेक्रेटरी को कुछ बड़ी अमाउंट उसमें लिखवाई. सेक्रेटरी ने बोला, मुझे क्यों देते हैं, आपके फैमिली वालों को दे दो. बोले, उनको तो दिया, आपने ईमानदारी से मेरी सेवा की है इतने साल, तो मुझे आपको इतना देना. अरे इतना सारा पैसा मत दो. नहीं, it is my will, it is not your will. You have served me for 30 years diligently, sincerely, honestly. Therefore, I want to give it to you. Will कर दिया, execute कर दिया, witness ने खुद साइन कर दिया, हो गया. बोले अब खाना लगाने का बोलो. खाना लगाया, खाना खाया. अब मैं सो जाता हूं. सो जाके ऐसे चेयर में बैठ के चले गए. देखो, ये 30 साल कोई धर्म करता है without expecting. That's a niskam karma, and we are going to talk about the niskam karma also. I have also learned that when we do niskam karma, there is a joy from within. And when we do all work with selfish motive, we many a times are not getting the true joy that we should get. That is a transient sukh we get, but not the anand, as we call it. There is no word in English according to me for anand, but conveniently we are translating it into joy. So enjoyable and useful life, that is our point of discussion today. So खाना क्या नहीं खाना, पीना क्या नहीं पीना, सोना कैसे, मेहनत करके, ईमानदारी करके. रोना कैसे, रोना भगवान के लिए रो. हम लोग बार बार रोते हैं हमारे लिए, स्वार्थ के लिए. डरना किससे, भगवान से डरो. हम लोग गलत करके इंसान से डरते. इंसान का डर है वो हमें झूठ बोलना सिखाता है, भगवान का डर हमको सच बोलना सिखाता है. मरना में भी विवेक चाहिए. कैसे मरना, जाते हैं तब पूरा याद आ जाए, हमारे पाप, जितने मैंने पाप किए हैं वो सब मुझे दिखेगा. और मैं यहां से, भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, there is not a single watchman, my dear brothers and sisters, that the Almighty has kept. We may keep all this camera, and we are going to talk
about these cameras of Almighty also, if the time permits, in the later part. But without there being any watchman, the arrangement of Almighty is such that you cannot take a single pin with you when we go. So when we go, we have to go empty-handed. क्या साथ में आएगा? बात करेंगे, हमारे कर्म साथ में आएंगे. हमने जो भी यहाँ बोया है वो हम पाएंगे नेक्स्ट जन्म में, नेक्स्ट बर्थ में. ओ पक्का हम पाते हैं. दैट इज व्हाट श्रीमद् भगवद गीता आल्सो सेज. तो हमको मरना, क्योंकि मरने के टाइम हमको सब याद आ जाएगा कि मैंने इतना इतना करके, मैंने जो पाप किए होते हैं तो सब याद आ जाएंगे. यार कि क्यों किया, क्यों इनका ले लिया, क्यों इनके साथ ये अन्याय किया, अब मैं क्या ले जाता हूं, कुछ नहीं. तो मेरा मरना बिगड़ा और मैं मरता हूं तब, हाँ मैंने किसी को अन्याय नहीं किया है, मैंने मेरी ड्यूटी ठीक तरह से की है, तो मैं शांति से, हाँ भगवान अब नया शरीर मिलेगा, मुझे फिर से तुझे मिलना है, मुझे मेरी जर्नी from birth to death has become joyful. I have purna santosh, and that is how I have seen some people, who died. A man who was relative of us at the age of 100 years and 20 days, I used to go to see him every 15 days. He had no much money, but then God took his care. The God doesn't come, in the form of Lord Krishna, Lord Shivji in every time, but he comes in the form of maybe some person who was taking good care of that person till the age of 100 years and 20 days. तो 2 दिन पहले मुझे बताया, नीलेश भाई अब 2-3 दिन है, जाने का समय हुआ है, बड़ी खुशी है, आनंद है, कोई चिंता नहीं है, मजा है, 2-3 दिन, हाँ फिर नहीं रहेंगे. और सही में 2-3 दिन के बाद दोपहर 12 बजे खाना खा के 2 बजे चले गए, ऐसे ही. तो ये हम लोग जाते हैं तो कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, अंतर से कि भगवान की जो व्यवस्था है उसी में हम लोग भी समाहित होने वाले हैं, क्योंकि जिनका जन्म है उनका मृत्यु निश्चिंत है. संतान पैदा करना ये भी धर्म है, उसमें क्या विवेक होता है, कैसे संतान पैदा करे, वो हमारे हाथ में है. अच्छे नागरिक पैदा करे, अच्छे संतान पैदा करे, वो वीर्यवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, शक्तिवान हो, धैर्यवान हो और अच्छे गुण वाले हो, तो समाज में जाके समाज की सेवा करे, समाज में अच्छा व्यवहार करे. ये भी एक विवेक है, कैसे संतान पैदा करना. अगर हमारे संस्कार ठीक नहीं है तो हम हमारे बच्चे को कैसे संस्कार दे पाएंगे. तो ये हमारा धर्म मतलब खाना पीना, सोना, रोना, डरना, मरना, संतान पैदा करना, ये भी हम धर्म की व्याख्या में जो करपात्री जी महाराज ने बोला है वो भी ध्यान रख सकते हैं. हम कैसा खाना, उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता सेज, एक हाथ श्लोक, there are 2-3 verses, but I'll tell you only 2 verses. 17:8 is 17th chapter, 8th verse. Lord Krishna says, Ayuhu sattvabalarogya sukha priti vivardhana rasya snigdha sthirarudhya ahara satvika priya. सात्विक लोगों को कैसा आहार प्रिय है, वो आयु बढ़ाए, सत्व बढ़ाए, सत्व गुण बढ़ाए, बल बढ़ाए, आरोग्य अच्छा रखे, सुख बढ़ाए, प्रीति प्रेम विवर्धना बढ़ाते हैं. तो अब मैं ये श्लोक पढ़ता हूं और कभी पेड़ खाता हूं, एप्पल खाता हूं, कभी केला खाता हूं. ये जो फल है ना, वो पृथ्वी माता ने अपने रस से सींचे हुए होते हैं. आयु भी बढ़ाते हैं, सत्व भी बढ़ाते हैं, बल, आरोग्य, सुख. ऐसा आहार किसको प्रिय है? सात्विक लोगों को. फिर ऐसा भी कहा है, राजसिक को कैसा प्रिय है, तामसिक को कैसा प्रिय है, ये सब भी श्रीमद् भगवद गीता में बताया है. बट हमको क्या सीखना है? विवेक. विवेक मीन्स अच्छा क्या है, बुरा क्या है. तो ये जो है सात्विक खुराक है, वो हमारे लिए अच्छा है. फिर भगवान ने बताया 6th चैप्टर में 17th वर्ष में, कितना खाना वो नहीं बताया. ये करपात्री जी महाराज ने बताया ना, खाना पीना सोना.
ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता में लॉर्ड कृष्णा सेज युक्ताहार विहारस्य 6 chapter 17th verse युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुःखः, सब दुख को हरने वाला योग कौन सा है? युक्त आहार, युक्त विहार। हम खाना खाली मुंह से नहीं खाते हैं, हमारी सब इंद्रियों है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हमारी कर्णेंद्रिय, हमारी घ्राणेंद्रिय, हमारी रसनेंद्रिय, हमारी आंखें, ये सबसे हम खाना खाते हैं। तो क्या खाना? आंख से क्या देखना, कान से क्या सुनना, नाक से क्या सूंघना, हाँ, रसना से क्या खाना, ये और त्वचा से क्या स्पर्श करना, ये भी विवेक है। किसको स्पर्श करना, क्या क्या सूंघना। तो ये युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हमारा जो भाग में कर्म आया है वो उसमें हमारी चेष्टा युक्त, युक्त इज योग्य, just the right, just the perfect, just the righteous. युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोना भी 10 घंटे नहीं सोना, 2 घंटे भी नहीं सोना। युक्त स्वप्नावबोधस्य, जागना। कभी मैं भी जागता हूं ऑफिस में, पूरे रात काम है तो once or twice in a month or maybe once or twice in a year, but डेली रूटीन हमारा ऐसा होना चाहिए। वो मैंने सीखा है कि too much of sleeping is not good, not at all sleeping is also not good, too much of eating is not good, not at all eating is also not good, too much of vihar is not good, not at all doing vihar is also not good. And हमारे कर्म में too much of workaholicness and forgetting family, forgetting others is also not good. At the same time, not at all working is also not good. That is why Lord Krishna says yukta ahara vihara. My dear brothers and sisters, the agenda that I have decided myself is to tell you about the lessons that I have learned from Srimad Bhagavad Gita for enjoyable and useful life, or I will call it 4 keys for joyful life. 4 चाबियां सुखी जीवन जीने के लिए। डिफिकल्ट है, कोशिश जरूर करनी चाहिए। मेरा अनुभव है खुद का कि धीरे 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 लाइफ में सुख दुख दोनों आते हैं, हाँ, अच्छा बुरा वक्त आते हैं। दिन में 50 बार सुखी होते हैं, 50 बार दुखी होते हैं। तो इसमें आपकी सुख की अवधि है वो बढ़ेगी, दुख की अवधि कम होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। विच एंड दीज 4 keys आर सच। जो हमारे तिजोरी की चाबी है ना, हम यहाँ लटका के जेब में लेके फरते हैं, उसका तो भार लगता है, उसकी चिंता भी होती है कहीं गिर नहीं जाए, हाँ, गाड़ी की चाबी है कहीं खो नहीं जाए, ये सब चिंता होती है। ये 4 चाबियां अपने जेब में रखो, उसका कोई बर्डन नहीं लगेगा। वो 4 चाबियां जहां जाओ वहां हमारे साथ में रखो। फर्स्ट की, हाँ, 4 की। फर्स्ट, एक्सेप्ट द सर्कमस्टेंसेस विथ विटनेस एटीट्यूड। साक्षी भाव से सब संयोगों का स्वीकार करो, संजोगों का सहज स्वीकार। जो भी संयोग होता है, अच्छा बुरा, विथ विटनेस एटीट्यूड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। वो ऐसा नहीं है कि आज आपने डिसाइड किया आज आ जाएगा, धीरे धीरे धीरे, शनै 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 रूप परमेत भगवत गीता में बोलते हैं भगवान अर्जुन को, शनै शनै, धीमे धीमे। तो संयोगों का सहज स्वीकार करना है। कुछ फायदा हो गया कूदने लगते हैं, वो धीरे धीरे कम करना है। कुछ नुकसान हो गया पैसे का, हाँ, किसी की डेथ हो गई, किसी का पैर टूट गया, हमारा टूट गया, हम लोग इतने रोक कर मचा देते हैं, उसको भी सहज भाव से स्वीकार। सेकेंड थिंग, फर्स्ट संयोगों का सहज स्वीकार। सेकेंड की, गुण ग्राहक स्वभाव। जहां से अच्छा मिले वहां से लेते चलो, और जिनका उसमें वहां चोरी भी करो, लूट लो उनका। और जिनका इस अच्छे गुण है आप लूटेंगे, वो जो
पर्सन है, इंसान है, वो खुश होगा, हाँ ये अच्छी क्वालिटी मेरे से ले रहा है, इसका चोरी करके भी जाओ उनको बोल के जाओ, नहीं बोल के भी जाओ, खुश होंगे, उसमें उनका कोई नुकसान नहीं है। तो गुण ग्राहक स्वभाव इज इम्बाइबिंग गुड क्वालिटीज। श्रीमद् भगवद गीता इज फुल ऑफ गुड क्वालिटीज एंड यू नो आई विल शेयर यू ओनली सम ऑफ देम इन द गिवन टाइम पीरियड। थर्ड की, हाँ चौथी चाबी है, तीसरी चाबी है अवॉइड बैक बाइटिंग। बैक बाइटिंग इज निंदा, किसी की गैरहाजिरी में उनके लिए बुरा बोलना, हाँ ठीक नहीं बोलना, ये निंदा है। तो अनिंदक स्वभाव, malicious talk about someone who is not present is निंदा। तो अनिंदक स्वभाव इज कभी किसी की निंदा नहीं करने की कोशिश करो। मैं पहले 500 बार करता था दिन में, फिर 400 बार हुई, 300 बार हुई, मजा आता है। अब मैंने छोड़ दिया किसी की निंदा करना, फिर भी हो जाता, क्योंकि we learn as long as we live and learners are always earners. Why I am sharing this with you? I have seen in myself a lot of improvement, you know, and which has helped me in my practice also. All these aspects will not only help in whatever practice you are doing, whatever work you are doing, it will make your life joyful. On this earth, ऐसा कोई करते हैं, पर हम लोग कहीं ना कहीं ये सब करते हैं। मेरा 7 नंबर का मकान है, 6 नंबर वाले ने 5 नंबर वाले से अपना मकान लिया 2 दिन यूज करने के लिए। भाई हमारे यहाँ शादी है, 5 नंबर आप तो बाहर है, तो मुझे चाबी दे दीजिए, हमारे सब मेहमान आएंगे, हम लोग यूज करेंगे। तो मैं 7 नंबर में रहता हूं, मैंने मकान दिया नहीं, मैंने मकान लिया नहीं, 6 नंबर वाले ने लिया 5 नंबर से। 2 दिन के बाद शादी हो गई, सब मकान की उनको चाबी दे दी। तब मैं मेरी बीवी को बोलता हूं, मेरी पत्नी को बोलता हूं, हाँ बैठ के, देखो ये 6 नंबर वाले भले लुच्चे हैं, मीठी मीठी बात करके 5 नंबर का मकान यूज किया, देखो कैसा गंदा छोड़ दिया। अब मैंने गंदा छोड़ा है, मैंने दिया, मैंने लिया, ये निंदा है। ये मैं निंदा, ऐसी निंदा करता था पहले, अब मुझे उसमें क्या फायदा मिलेगा। हाँ बोलते हैं कि निंदा रस बड़ो प्यारो है, निंदा की में बड़ी मजा आती है, बट मैंने सीखा है, जब से श्रीमद् भगवद गीता से सीखा है, तब से मैंने कम कर दिया। और कहीं आप जैसे लोगों से सत्संग पाया, उसमें से सीखा, मैंने कम कर दिया है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा 2 घंटा, कई बार 3 घंटा, कई बार 1 घंटा पूरे ये गांव की चिंता में, निंदा में चला जाता था, उसका मेरा टाइम बच गया, अच्छे के लिए मैं टाइम यूज करता हूं। 4th की, तो एक संयोगों का सहज स्वीकार, दूसरा चाबी मैं बार बार आपको बताऊंगा ताकि आपको ये लेक्चर के बाद याद रह जाए, और उसका प्रैक्टिस शुरू करना है। देखो सुनने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उसका अनुभूति है, वो करनी है। अनुभूति कैसे होगा? हम कोशिश करेंगे कि जैसे भी संयोग आए उसको स्वीकार करे, सहजता पूर्वक। इम्बाइब गुड क्वालिटीज, जहां से हमको गुण मिले, गुण ग्राहक स्वभाव रखो, अनिंदक स्वभाव रखो। और चौथा है अकर्तृत्व भाव, एब्सेंस ऑफ डूअरशिप, आई एम नॉट द डूअर। हम लोग बात बात में, मैं पहले बोलता था मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, अभी भी बोलता हूं, कम हुआ है, इससे कम हो जाएगा। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द पावर ऑफ गीता, you know, after talking about these 4 keys. Accept the circumstances. भगवद गीता क्या बोलती है? जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः, 227, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्जुन को बोलते हैं कृष्ण भगवान, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जिनका जन्म है उनका मृत्यु निश्चित है, ध्रुव है। और जो जिनका मृत्यु होता है उनका जन्म भी निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात्, therefore अपरिहार्येऽर्थे, one which is not, which cannot be avoided। न त्वं शोचितुमर्हसि,
तू उसके लिए शोक करने योग्य नहीं है। जो अनिवार्य है, जो होने वाला है, इनएविटेबल है, प्लीज डू नॉट लेमेंट ओवर देम। हम लोग इतने अपरिहार्य है, जो होने ही वाला है उसके लिए उसका लेमेंट नहीं करना, उसको स्वीकार करना, ये भगवत गीता में बोला है। फिर दूसरे 2-3 वर्सेस है, वहां भी बोला है। और ऐसे you will find more than, and some of the listeners also can add to this, and it will be a mutual learning if you add, something to this. But keeping in mind the time that was devoted to me, I have chosen 2:14 and 2:15, accept the circumstances as they are. 2:14 says, again, this is also Lord Krishna tells Arjun, Matra sparshasthu kaunteya शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जभी इंद्रियों को विषय का स्पर्श होता है, whenever there is a contact of sense with the sense objects, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः, या तो ठंडा लगता है, गर्म लगता है, सुख देता है या दुख देता है। कोई भी देख लो, हमको खाना कुछ अच्छा पसंद है, वो हमारी जिह्वा को स्पर्श करे तो हमको सुख होता है। और कुछ खाना पसंद नहीं है, करेला है, मुझे पसंद नहीं है, और करेला तो मैं बोलता हूँ ओ ये तो कड़वा है, खड़ूचा है, मुझे पसंद नहीं है, तो दुख होता है। कोई भी इंद्रियों को विषय का स्पर्श होता है, या तो सुख देता है या दुख देता है, या ठंडा लगता है, गर्म लगता है। बट कृष्ण सेज, लॉर्ड कृष्णा सेज, आगमापायिनः, आता है जाता है, इट इज ट्रांजिएंट इन नेचर, इट कम्स एंड गोज अवे, तान् तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, इसको सहन कर, सहन कर। वो तितिक्षा का एक हमने हिंदी पर्याय और इंग्लिश में हम बोलते हैं प्लीज टॉलरेट इट। बट पहले मुझे भी ये इसमें ज्यादा में अंदर नहीं गया था, तो मुझे तितिक्षा का मीनिंग पता नहीं था, तो मैं बोलता था हाँ सहन करना। सहन करना मतलब क्या? रोना, मुझे नुकसान हो गया, मुझे ये फायदा नहीं हुआ, ये मैं लेमेंट करता था, हाँ रोता था। फिर मैंने आदि शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में पाया कि तितिक्षा की डेफिनेशन है, एक एक शब्द है उनकी। देखो हमारी कितनी सेवा की है आदि शंकराचार्य ने इतने साल में। जितना भी जियो, अच्छा जियो, लोगों के लिए जियो, लोगों को कुछ अच्छा दे के जाओ। शंकराचार्य ने खजाना दे दिया हमको, हाँ, निर्वाण सदक दिया, ये दिया, मधुराष्ट्र जो भी दिया, और ये विवेक चूड़ामणि नाम का ग्रंथ दिया। हम बोलते हैं श्रद्धा क्या है, तो विवेक चूड़ामणि जब में जाओ श्रद्धा का मीनिंग देंगे। तो यहाँ तितिक्षा क्या है? विवेक चूड़ामणि में 24th वर्ष में आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। सहनम सर्व दुखानाम, सब दुख को कैसे सहन करना का? अप्रतीकार पूर्वकम, प्रतिकार नहीं करने का। हम लोग फीवर आ गया तो बोलते मुझे क्यों आ गया? अरे भैया 365 दिन में 360 दिन नहीं आया, भगवान का आभार लगाओ, आभार मानो, नहीं आया। और 5 दिन में हम रोते हैं, हाँ मुझे क्यों ताव आ गया, मुझे क्यों बुखार आ गया, ये ऐसा हम करते हैं। तो अप्रतीकार पूर्वकम और चिंता विलाप रहितम, हम लोग चिंता करते हैं अब क्या होगा, विलाप करते हैं, रोते हैं। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते, उनको तितिक्षा बोलते हैं। तो ये शंकराचार्य जी से मैंने पढ़ा, बाद में थोड़ा फर्क पड़ता है कि दुख आ गया तो हम सोचते हैं आगमा पायिनः, आएगा चला जाएगा। सुख भी आता है तो हम सोचते हैं आगमा पायिनः तान् तितिक्षस्व भारत। सुख में हाँ उलझ नहीं जाते हैं, उसमें बहुत खुश करके नाचने कूदने नहीं लगते हैं। ऐसे ही दुख में भी रोने नहीं लगते हैं, चिंता नहीं करते हैं, विलाप नहीं करते हैं, तो उसको तितिक्षा बोलते हैं।
और उसमें 215 में भगवान बोलते हैं यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते सम. Entire Gita is about samatvam, sama, dukkha, sukha. Yoga is samatvam. Samatvam yoga uchyate. भगवद गीता में बताया है श्री कृष्ण भगवान ने. सम दुख सुख धीर. धीर की भी व्याख्या है हमारे शास्त्रों ने की है. इतना अच्छा है. धीर किसको बोलते हैं? मेरे पास कोई रूप देखने के लिए नहीं है. हाँ, मैं कहीं जंगल में हूं, वहां स्त्री का दर्शन भी नहीं होता है और मैं ब्रह्मचारी रहूं, वो धीर नहीं है. मेरे पास कुछ खाने का नहीं है और मैं उपवास रखूं, वो धीर नहीं है. प्रचुर मात्रा में हमारे पास हमारी इंद्रियों को बहकाने के लिए सब साधन सामग्री है, फिर भी विचलित नहीं होते हैं, फिर भी हम भान नहीं भूलते हैं, विवेक रखते हैं, उसको धीर बोलते हैं. तो ये धीर की भी डेफिनेशन है. विवेक चूड़ामणि हमने देखा. Except the circumstances में you will find so many. एक 238 में श्रीमद् भगवद गीता में लॉर्ड कृष्णा से सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि. Again and again repeatedly Lord Krishna says in श्रीमद् भगवद गीता सुख दुख ये सब जो है ना डाइकोटोमी, सुख दुख, लाभ अलाभ, जय अजय, हाँ, जीतना हारना, लाभ होना, नुकसान होना, सुख होना, दुख होना, समय कृत्वा उसमें इक्वानिमिटी रखो. और जो भी हमको हमारे धर्म करते हैं उसे मिलता है, उसमें संतुष्ट रहना, द्वंद्व से दूर रहना. ये द्वंद्व है, सुख दुख, लाभ अलाभ, जय अजय, ये उसे मुक्त रहना. ये कोशिश करने जैसी है. हो सकता है हम बोलते हैं यार कैसे हम दुखी नहीं हुए, कैसे हम सुखी नहीं हुए, ये सब होता है हमारी जिंदगी में. बट आपका कांस्टेंट रीडिंग, कांस्टेंट स्टडी एंड कांस्टेंट thinking about it and practice of some of the principles that Lord Krishna has given in Srimad Bhagavad Gita will make our life joyful, will make our life, and over a period of time, Shane will have this power of, becoming equanimous in all conditions. Samatvam yoga uchyate, that is called yoga. Samatvam, equanimity. And in 422, Lord Krishna says, यदुच्छालाव संतुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते. वो बंधन में नहीं आता है. जो भी आदमी यदृच्छा लाभ संतुष्टः, हमने कुछ अपेक्षा नहीं रखी है और जो लाभ हमें मिले उससे संतुष्ट है, द्वंद्व से अतीत है. विमत्सरः, मत्सर इज सबका द्वेष करना, विमत्सर इज किसी का द्वेष नहीं करना, सब में भगवान देखना. हाँ, खुशी होगी, कोशिश कर लेना. हम कोशिश करते हैं कुत्ते में भी भगवान देखो, हाथी में भी भगवान देखो. फिर विवेक आएगा तो हाथी में भगवान देखना मतलब उसमें भी विवेक चाहिए. रामकृष्ण परमहंस ने अपने चेले को बोला सब में भगवान देखो. एक दिन उनका चेला हाथ तोड़ के आया, पैर तोड़ के आया. रामकृष्ण ने बोला क्या हुआ? अरे भाई ये हाथ टूट गया. क्यों हो गया? हाथी ने तोड़ दिया. क्यों तोड़ दिया? आपने बताया था कि सब में भगवान देखो. तो एक हाथी आया था, महावत उसके ऊपर बैठा था, महावत चिल्ला रहा था दूर चले जाओ, दूर चले जाओ, हाथी पागल हो गया है, हाथी पागल हो गया है. हाँ, ऐसे करके बोल के आता था. आपने बोला था सब में भगवान देखना, तो मैंने भी हाथी में भगवान देखना, मैंने हाथ जोड़ के भगवान देखा उसमें और उन्होंने मुझे गिरा दिया. ये मेरा फ्रैक्चर हो गया. रामकृष्ण ने बोला आपने हाथी में भगवान देखा, वो महावत में भगवान नहीं देखा. तो महावत बोल रहा था चिल्ला चिल्ला के हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, हाथी पागल है. तो ये विवेक है.
हाथी में भगवान देखना, कुत्ते में भगवान देखना, सभी में भगवान देखना, उसमें भी विवेक चाहिए। तो विवेक इज धर्म, एक्सेप्टिंग द सर्कमस्टेंसेस। वो उनको जो समत्वम है, इक्वानिमिटी है, वो कृत्वा भी, कुछ भी काम करके उसमें बंधन में नहीं आएंगे। They do it as the duty destined upon them. Accept the circumstances as they are. कई बार हम बोलते हैं बीवी को ये नहीं करना चाहिए, बेटे को ये नहीं करना चाहिए, स्टाफ को ये नहीं करना चाहिए, बॉस को ये नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसर को ये नहीं करना चाहिए, मोदी साहब को ये नहीं करना चाहिए। हाँ, सबकी अलग अलग प्रकृति है। श्रीमद् भगवद गीता says in 333, वो खास ध्यान रखना, my dear brothers and sisters, I have got a lot of benefit out of this verse 333. कभी भी मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, इनको ऐसा करना चाहिए, तभी मैं कोशिश कर लेता हूं कि हमारी इच्छा के अनुसार होए। बट कभी हमारी इच्छा के अनुसार कोशिश के बावजूद नहीं होता है, तो 333 याद रखो, सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। उसका निग्रह क्यों करते हैं? इनको ऐसा ही करना चाहिए। कुत्ते का एक स्वभाव होता है, मंकी का एक स्वभाव होता है, ऐसे ही ह्यूमन बीइंग का अलग अलग प्रकृति रहती है, और उसमें हम राग द्वेष जितना करेंगे उतना दुखी होंगे, जितना इनको एक्सेप्ट करेंगे। और believe me, my dear brothers and sisters, it is my experience that there is also a law of attraction. हमको दुनिया को सुधारनी नहीं है, हमको खुद सुधरना है, हमको खुद अच्छे बनना है। अच्छे बनेंगे तो there is a law of attraction, mostly you will get good company. दारू पीने वाले को दारू पीने वाली कंपनी मिल जाती है, सिगरेट पीने वाले को सिगरेट की कंपनी मिल जाती है। ऐसे ही मैंने देखा है सत्संग में रहने वाले, अच्छे कार्य करने वाले, उनको ऐसी ही कंपनी मिल जाती है और उसमें साथ सहकार भी मिलता है। तो सब लोग अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। उसमें ज्ञानवान अपि, वाइज मैन है, उनकी भी एक प्रकृति है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, प्राणी मात्र को प्रकृति अपनी होती है। निग्रह किम करिष्यति, हाँ, हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेस करते हैं। तो उस कुछ मिलने वाला नहीं है, इनको ऐसे ही करना चाहिए। ये हमारा दुराग्रह है, दुराग्रह नहीं रखने का कि उनकी प्रकृति है, स्वीकार कर। उनकी प्रकृति में से, उसमें से क्या बेस्ट हम ले सकते हैं वो ले लो, बाकी नहीं तो रोज रोएंगे, रोज झगड़ा करेंगे, रोज दुखी होंगे। ये ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, उनकी प्रकृति है, स्वीकार कर लो। निग्रह किम करिष्यति, यही याद रखने का। हाँ, तो एक एक इंद्रियों में भी राग द्वेष छिपे होते हैं, उससे दूर होने का भी भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया है। अब हम दूसरी क्वालिटी लेते हैं, गुण ग्राहक स्वभाव। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में सुख कभी है ही नहीं। ये हमारा भ्रम है कि हमारे पास ये वस्तु आ जाए तो हमको सुख होगा, ये व्यक्ति हमको मिल जाए तो उनसे सुख होगा, ये परिस्थिति आ जाए तो हमको सुख होगा। प्लीज नॉट, द जॉय लाइज विद इन। सुख हमारे आत्मा के अच्छे गुण में है, सुख बाहर कहीं नहीं है। हम लोग भटकते हैं और उलझ जाते हैं। देख लीजिए, आप बोलते हैं कि हमको मकान में सुख है, 25 साल के बाद जर्जरित होगा, पुराना होगा, उसमें खर्चा होगा, उसमें रहने की मजा नहीं आएगी, फिर दुख होगा। हाँ, खुशी खुशी हम लोग जाते हैं। ये मुझे पत्नी में पहले क्या बोलते हैं कि मैं सीए हो जाऊं, सीए बन गया, बाद में क्या, हाँ, अपना जॉब मिल जाए या अच्छी प्रैक्टिस चले, बाद में क्या, नहीं, एक अच्छी पत्नी मिल जाए, मिल गई, बाद में आप बच्चे हो जाए, बच्चे हो गए, बाद में हमारे वो अच्छी पढ़ाई कर ले, पढ़ाई करने के बाद उनके यहाँ शादी हो जाए, फिर उनके यहाँ बच्चे। कितने साल हम लोग तब तो लुढ़क जाते हैं। हाँ, और कितने सुख की शोध में जाते हैं, और फिर इसमें कितने दुख भी मिलते हैं ना, मिलते हैं। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में सुख नहीं है, उसमें उनका उपयोग है।
और संयम रख के उसका उपयोग करके अटैचमेंट मत रखो, उनसे अटैचमेंट मत रखो। तो गुड क्वालिटीज हम लोगों को कहां से सीखने का मिलेगा, कहां से जानने का मिलेगा? लॉर्ड कृष्णा सेज इन 434, व्हेन आई से 434, 4th chapter 34th verse, तद्विद्धि प्रणिपातेन, वाइज लोगों के पास जाओ, वाइज शास्त्रों के पास जाओ, उनका शरण लो। और जो ज्ञानी है वो ज्ञानी ने भी शास्त्रों से लिया है, और हमारे शास्त्र है, भरपूर है हमको मार्गदर्शन करने के लिए। उसके लिए कृष्ण भगवान भी बोलते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य के निर्णय में शास्त्र प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थितो, उस भगवान ने भी बोला है। तो ज्ञानी के पास से ज्ञान कैसे मिलेगा, गुड क्वालिटीज कैसे जानने की मिलेगी? लॉर्ड कृष्णा से तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शिनः एक तत्व होता है, तत्व इस तत्वदर्शिनः, जिन्होंने सत्य देख लिया है, सत्य का दर्शन किया है, ऐसे ज्ञानी के पास से ये जानो तद्विद्धि। ये ज्ञान कैसे? भगवान कहते नहीं, ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। ज्ञान जैसा पवित्र इस दुनिया में, इस विश्व में, इस संसार में, इस लोक में कुछ नहीं। ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, उसके जैसा पायस थिंग कोई नहीं है, पवित्र चीज कोई नहीं। तो कैसे मिलेगा? तत् स्वयं योग संसिद्ध, जो योग संसिद्ध हो जाएगा। योग संसिद्ध इज समत्वम, इक्वानिमिटी इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आत्मनि फ्रॉम विद इन विन्दति, वो पाएगा, अंदर से पाएगा। और जाना कहाँ है? तद्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणाम करके, साष्टांग प्रणाम करके, परिप्रश्नेन, कुछ जानने की इच्छा से गुरु के पास जाओ, उनसे प्रश्न करो। सेवया, गुरु की सेवा करने के लिए। किसकी? कौन गुरु? तत्वदर्शिना। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, वो ये जो ज्ञानी है, ज्ञानी है, तत्वदर्शीन है, वो आपको ये ज्ञान का उपदेश करेगा। तत्व मतलब ट्रुथ। दो शब्द संस्कृत में बड़े अच्छे हैं, मुझे पसंद है। एक होता है मत्तम, दूसरा होता है तत्वम। मत्तम is opinion. We give as a chartered accountant so many opinions. In my opinion, this is like, it is like this. तो ये मत है। तत्व is truth. तत्व, मत can be different. We say tunde मतिर भिन्ना। एक एक आदमी की मति अलग अलग होती है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवान अपि, वो हमने अभी देखा। तो ये मत होता है ना, वो अलग अलग हो सकता है, तत्व एक ही होता है। तो तत्वदर्शिनः, जो ज्ञानी लोग ने तत्व को जान लिया है, उनके पास से ये ज्ञान ले लो। कैसे? प्रणाम करके, जानने की सही इच्छा रखने से, तत्परता रखने से, सेवा करके, वो ज्ञानी आपको ज्ञान देंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय, जो इंद्रियों को संयम में रखता है, वो श्रद्धा रखता है, तत्पर है, वो ज्ञान पाएगा। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, वो ज्ञान पाके, ज्ञानम लब्ध्वा, by getting this knowledge, पराम शांतिम, कैसी पराम शांतिम? शाश्वत शांति, अचिरेण, तुरंत मिलेगी, तुरंत मिलेगी। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने पराम शांति, परम शांति पाने के लिए हमको मार्गदर्शन किया है। और जब भी हम लोग ज्ञानी के पास जाते हैं तो हमको इतना आनंद होता है। यहाँ इन्होंने तत्व को जाना है, तो गुण ग्राहक स्वभाव, जहां से मिले अच्छे गुण ले लो। फिर कौन से गुण अच्छे हैं, उसके लिए भी खजाना है। मैं आपको खाली सैंपल देता हूं। श्रीमद् भगवद गीता में खजाना है। 12th chapter, go to 12th chapter, भक्ति योग।
And Lord Krishna from 12-13 onwards in about 6-7 verses tells you, gives you a long list of qualities. And I will only, chant for you 12-13 and 12-14. 12-13, Lord Krishna says, Advesta sarva bhutanam maitra karuna evacha nirmamo nirahankaraha samadukha sukhakshami santustah satatam yogi yatatma dudha nischaya मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मत भक्त समे प्रिय। भगवान बोलते हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। ऐसे काफी क्वालिटीज है, बट ये 12, 13, 14 में से अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र का द्वेष नहीं करना, कोशिश करना। हम लोग दिन में 50 बार किसी ना किसी का द्वेष करते हैं। ये मुझे बंदा पसंद नहीं, ये मुझे छिपकली पसंद, तुझे पसंद नहीं है। वंदा वंदी को बोझो, उनको पसंद है तो उनका द्वेष मत करो। हाँ कि ये क्यों आ गया, लोग है हमारे एक आए थे तो छिपकली को देख के रात को 12 बजे बोले मैं होटल में नहीं रहूंगे, होटल से मुझे बाहर निकालो, यहाँ छिपकली है। तो एक छिपकली से भी इतना द्वेष मत करो, सीख लो, नहीं तो दुनिया में हर जगह दुख हो मिलेगा। अद्वेष्टा, भगवान बोलते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र, सबके साथ मैत्री रखो, जहां मिले वहां। राजेश अग्रवाल हमारे दोस्त हो गए आज। हाँ, मैत्र, करुणा, लोगों के लिए करुणा लगो। किसी का पैर टूट गया, हम लोग बोलते हैं हाँ अच्छा हुआ, ये ठीक नहीं है। करुणा रखो, भगवान को प्रार्थना करो हाँ कि अभी ये जो साइक्लोन आया है उसमें कम से कम नुकसान हो सके तो किसी को नुकसान नहीं हो, ऐसी प्रार्थना करो। स्वामी विवेकानंद ने बताया है कि सुखी होने का सहला, इजीएस्ट, चीपेस्ट, क्विकेस्ट, श्योरेस्ट वे इज half a minute job, half a minute, less than half a minute job every day. Swami Vivekananda says, सीधा बैठो, चट्टार बैठो, मॉर्निंग में, सुबह, अर्ली मॉर्निंग बोलो, मन में बोलो, बाहर से बोलो, जो भी बोलना है मन में बोलो। पूर्व में सबका कल्याण हो, पश्चिम में सबका कल्याण हो, उत्तर में सबका कल्याण हो, दक्षिण में सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो। बस कितना, आधी मिनट भी नहीं होती है प्रार्थना। कोशिश करिए। हम लोग जब भी बाहर अच्छी भावना भेजते हैं तो सबसे बड़ा फायदा पहले हमको होता है, हमारी भाव शुद्धि होती है। भाव संशुद्धि के लिए भी श्रीमद् भगवद गीता में मार्गदर्शन है कि मन का तप है, आज नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे शनै शनै भाव संशुद्धि करना है, मन का तप है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो, मेरा कुछ नहीं, एक दिन में, एक मिनट में छोड़ के चले जाना है सब कुछ, मेरा 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 करके। हाँ, यहाँ है तब तक हम भाड़े के मकान में रहते हैं, कोई परमानेंट साथ में नहीं, परमानेंट एक ही है भगवान। जब तक हम जिएंगे उसका साथ रखो। लॉर्ड ऑलमाइटी, देयर इज सम पावर which manages the whole world. निर्ममो, निरहंकार, किसी का अहंकार नहीं हुआ है हमको। भगवान को रोज प्रार्थना करो। अहं सम दुख सुख, सुख दुख में समा। अगेन एंड अगेन रिपीटेडली लॉर्ड कृष्णा टेल्स ही इज अ गुड टीचर, ही इज एन एक्सीलेंट टीचर। हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू डॉन दिस थिंग, वो फॉरेन ऑथर को सुनते हैं, बट वी नेवर लिसन टू अवर ओन केवी यादव। We don't say according to KV Yadav it is like this. KV Yadav is Krishna Vasudev Yadav, is Lord Krishna. Oh, he has guided us so many things, and we have forgotten Srimad Bhagavad Gita. Therefore, we know always talk about Johnson has said like this. What Johnson? Your KV Yadav is Johnson of Johnson, is father of all, and for 5,000 years we've been talking about Srimad Bhagavad Gita, and we are still, everywhere, wherever we go, we keep on listening to the praise of Srimad Bhagavad Gita. That's the power of it. That's the power of it, because it has got excellent material in it for useful life, for joyful life. Santushtah satatam yogi, संतुष्ट भी रहना है, सततम योगी भी रहना है, कार्य भी करना है। यथात्मा, दृढ़ निश्चय, फर्म डिटर्मिनेशन। और इतना करने के बाद भी मयि अर्पित मनोबुद्धि, ये भगवान को अर्पण कर दो, कृष्णार्पणम। ऐसे करके
जो काम करते हैं वो मुझे प्रिय है मतलब सबको प्रिय होंगे, आप किसी का द्वेष नहीं करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कुत्ता आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। कुत्ता ही नहीं, मनुष्य भी अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, ये याद रखना। हाँ, मुझे जब भी किसी का द्वेष होता है मुझे 12:30 याद आ जाता है। हाँ, तो ये फायदा होता है प्रैक्टिस में भी, क्योंकि काफी तरह के लोग आते हैं हमारे संपर्क में। रोज मैं कॉलेज में हूँ, काफी तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, मैं प्रैक्टिस करता हूँ जीएसटी की, कमिश्नर के पास हियरिंग में जाता हूँ, तो मैं अच्छा देखता हूँ। बुरे लोग तो होते हैं समाज में, पर काफी अच्छे हैं, वो मुझे लाइफ टाइम याद रहते हैं। बुरे हैं वो कहीं दुख हो के लोग याद करते हैं। तो जीवन ऐसा जीना है कि हम लोगों को एक भी बार मिले हैं किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर लो। हम हमारी जिंदगी में भी मैंने कैसे काफी अच्छे लोग देखे हैं, मैं कभी भूलता नहीं। इन 2002 में अफ्रीका गया था, उसमें एक जाम्बिया कंट्री है, नाइजीरिया गया था, फिर जाम्बिया गया। जाम्बिया में लुसाका में ठहरा था और मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना, रात को कोई लूट लेंगे, मार देंगे, ये सब, तो मैं नहीं निकल रहा। पर एक दिन वहां से थोड़ा दूर लिविंगस्टन गांव है, वहां एक विक्टोरिया फॉल्स है, दुनिया की 8वीं अजायबी। तो मेरे यहाँ वो इच्छा भी हो गई कि देख के और मन में डर। बस में बैठ गया लिविंगस्टन की, सैटरडे संडे छुट्टी थी, कुछ काम नहीं था। तो बस में एक सुंदर रामन करके चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल गया, इंडियन सीए, कभी हम मिले नहीं थे। उन्होंने मुझे पूछा कि आर यू इंडियन? आई सेड यस, क्योंकि वहां सब ब्लैक पीपल होते हैं, तो उनको थोड़ा लगा कि ये इंडियन लगता है। बोले कहाँ जा रहे हैं? मैंने बोला लिविंगस्टन जाना है, फिर वहां से विक्टोरिया फॉल्स का। कुछ पहचान जान पहचान नहीं। उन्होंने बोला कहाँ रहेंगे? मैंने बोला होटल अभी बुक नहीं करवाइए, जहां वहां जाके ढूंढ लूंगा। और मुझे मन में तो यही डर था कि होटल में भी कोई लूट लेंगे तो मेरी बस लेट पहुंचने वाली है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चिंताएं बहुत थी तब 2002 में, आज से 21 साल पहले। तो सुंदरामन साहब ने बोला कि इफ यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन यू कैन कम एंड स्टे विद अस। मुझे तो भगवान मिल गया उसमें, तो भगवान कोई कृष्ण भगवान के रूप में ही नहीं आते, सुंदर रामन के रूप में आते। तो मैंने बोला नहीं नहीं आपको तकलीफ होगी। नहीं नहीं आपको तकलीफ नहीं है ना, आप आ जाओ। घर ले गया, खाना खाया, रात को सोया। उनकी बीवी थी, उनकी मम्मी थी, उनकी बेटी थी। देखो, कोई अनजान लोग को कोई पहचान नहीं है, जान पहचान नहीं है। मैं गलत भी बोल सकता हूँ कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं लुटारा भी हो सकता हूँ, फिर भी उन्होंने श्रद्धा रख के, विश्वास रख के मुझे घर ले गया। दूसरे दिन अपनी बेटी के साथ मुझे विक्टोरिया फॉल्स लेके गया, 20-25 किलोमीटर्स। दोपहर खाना खिलाया, रात का खाना पैक कर दिया। मैं 3 बजे की बस में जाने वाला, बोले आपको रास्ते में कुछ खाना नहीं मिलेगा, होटल में भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा, रात का भी खाना पैक करके ले जाओ। और उसके बाद में 2000, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका कार्ड है, इज अ मैनेजर इन अ ब्लैंकेट कंपनी। उसके बाद मैंने काफी ईमेल किया, फोन किया, उनका कोई फोन उठाते ही नहीं, लगता ही नहीं है, ईमेल का कोई जवाब नहीं। तो देखो भगवान है, वो इसी स्वरूप में आते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, वो हमें याद रह जाता है। क्यों याद रह गया? सुंदरामन साहब क्यों याद रह गया? बिकॉज इनका व्यवहार किसी के साथ अच्छा था। यस्मान नो द्विजते लोको, तो किसी का द्वेष भी नहीं करना। लोकान नो द्विजते चाहिए, हमको भी किसी से दुखी नहीं होना है। हर्ष अमर्ष भय उद्वेग, उससे मुक्त रहना है। यह ऐसे लोग मुझे प्रिय है, बिकॉज हम लोग विचार से ही सुखी और दुखी होते हैं। अशांति और शांति भी विचार से ही होती है। उसके लिए अमृत बिंदु उपनिषद में कहा है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। पातंजलि योग सूत्र में भी ये आता है। तो मन से तप करना, मन से विचार अच्छे करना। हाँ, उसका ये भी मतलब नहीं है कि केयरफुल नहीं रहना। हाँ, देखना कि भाई कैसा है ये, भगवान अंदर से ताकत देगा, ये अच्छा है ये बुरा है, ये भी हम लोग। और मोस्टली
since I have started studying about little knowledge from Srimad Bhagavad Gita, I have found that I am getting most of the good people around me. My clients are good. Many of the officers with whom I am dealing, I have got such a wonderful experiences. Sometimes I feel, oh, it is all God's gift. So these are the experiences, and I go with a clean mind wherever I go. And even if, somebody is a corrupt officer, I don't care about that. I try to present my case in the best possible manner and then leave everything to Almighty. कई बार फेवर में आ जाता है, कई बार अगेंस्ट में आ जाता है. वो हमारा पहले दुख होता था, सुख होता था, खुदता था, ये ऑर्डर ड्रॉप हो गई, डिमांड अपील में जीत गए, ट्रिब्यूनल में जीत गए. अब ये रूटीन भी हो जाता है. फिर भी समत्वम, again, what we have to do is, I have learned is to do according to the best of our ability and leave everything to the Almighty. हमारी ड्यूटी क्या है? कि हमारा जो नियत कर्म है वो ठीक तरह से करना है. तीसरी चाबी, अनिंदक स्वभाव. उसके लिए एक शब्द है अभ्यसूयकाः. अब किसी का फॉल्ट भी नहीं है और मैं उसमें फॉल्ट ढूंढूं तो उसको अभ्यसूयकाः बोलते हैं. ये आसुरी संपत्ति है. श्रीमद् भगवद गीता में लॉर्ड कृष्णा से 2 प्रकार के लोग होते हैं. दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च. एक दैवी संपदा वाले, एक दैवी प्रकृति वाले हो, आसुरी प्रकृति वाले. तो आसुरी प्रकृति वाले की क्वालिटीज लॉन्ग लिस्ट दिया है 16th चैप्टर में, दैवासुर संपद विभाग योग में. आसुरी संपद, अहंकारम बलम. 16-18 आई एम गिविंग यू अ सिंपल. अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः. ये अभ्यसूयका है, वो ब्लाइंडेड बाय द ईगोटिज्म. स्ट्रेंथ, बल. दर्प इज अरोगेंस. कामम इज desire or lust. Krodham is anger. I was listening to Mr. Bhagirath Merchant. He was saying 1621 तीन नरक के द्वार है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्. 3 नरक के द्वार है, काम, क्रोध, लोभ. काम इज लस्ट, डिजायर. यही होना चाहिए. सब कुछ हमारी इच्छा से नहीं होता है. We have to accept. We have to do our duty. We have to try our level best and then accept whatever is the outcome. ये नरक के त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः. आत्मा का नाश करने वाला है 3 नरक के द्वार. काम, क्रोध इज एंगर. जब भी मुझे क्रोध आता है वो श्रीमद् भगवद गीता 16:21 याद है. नीलेश, नरक में जाने का छोड़ दे, ये नरक का द्वार है. तो कभी कभी रुक जाता हूं. अभी भी क्रोध कभी हो जाता है, बट मात्रा कम हो गई है. ये फायदा हुआ है. ये इट गिव्स यू. और इतना जितना एक बार क्रोध हो जाता है ना, फिर संबंध में मजा नहीं आता है. सामने वाले को, हमको भी नहीं है. क्रोध में हम कुछ भी बोल जाते हैं, पागल हो जाते हैं. पता नहीं चलता हम क्या करते हैं. तो blinded by the egotism, strength, arrogance, desire, lust and anger, the demonic is आसुरी संपदा. abuse me. वो भगवान को भी गालियां देते हैं. वो भगवान कौन है? आप में भी है भगवान, मेरे में भी है. तो मैं आपको गाली दूं मतलब मैंने भगवान को गाली दी. And Lord says, I am present in their own body. वो गालियां देने वाला है, अभ्यसूय का है. उनके शरीर में भी मैं विराजमान हूं, सब में मैं हूं. ये नहीं करना चाहिए. आसुरी संपदा है. और चौथी चाबी है अकर्तृत्व भाव. मैं करता हूं, अहंकार बढ़ाएगा. मैंने किया. एक दिन चला जाएगा. ये अहंकार है, ये अभिमान है. तो क्या सोचने का? भगवद गीता में लॉर्ड कृष्णा सेज, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा
कर्ताहमिति मन्यते। हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, थर्ड रेट है, ऐसा है वैसा है। संस्कृत में है विमूढ़, मूढ़, मूर्ख है उनको मूढ़ बोलते हैं, और जो ज्ञानी है उसको धीर बोलते हैं। कठोपनिषद में भी है कि मूढ़ है वो प्रिय पसंद करता है, अभी प्रिय है, बाद में जहर जैसा हो सकता है। और जो धीर है वो पहले वो श्रेय पसंद करता है, श्रेय में कल्याण होता है। मुझे अभी पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, मैं कभी सीए नहीं होऊंगा 10 ट्रायल के बाद, 10 साल के बाद। तो अभी मैंने जलसा कर लिया, मजा कर लिया, बाद में परिणाम क्या आया, 10 साल में सीए नहीं हुआ। 3 साल अच्छी मेहनत कर लूं, पिक्चर छोड़ दूं, पार्टी छोड़ दूं, सब कुछ छोड़ दिया, और 3 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। तो शुरुआत में जहर जैसा लगता है और बाद में अंत में अमृत जैसा है, वो सात्विक सुख है। भगवत गीता में ऐसा कहा है। तो प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्य। ऑल एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ये प्रकृति है। बट इन इग्नोरेंस the soul deluded by false identification with the body thinks of itself as a doer. अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। मैं प्रकृति की वजह से ये सब कर रहा हूं। हाँ, ये इसमें मेरा मैं करता नहीं हूं। ना हम करता हरि ही करता, मैं करता नहीं हूं। हमेशा सोचना कि हरि ने करवाया। कभी अहंकार नहीं होगा, कभी आप उससे नुकसान नहीं होगा। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत। तो 5859 में भी बोला है कि तत्वविद, जो तत्व को जानता है, सच्चा ज्ञानी है, वो बोलता है इंद्रियों के विषय में प्रवृत्त है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियान् इंद्रियार्थेभ्यः वर्तन्त इति धारयन्। भगवान बोलते हैं कैसा धारणा करने की, क्या सोचने का, कि ये पश्यन् देखते हुए, शृण्वन् सुनते हुए, हाँ, स्पृशन् किसी को स्पर्श करते हुए, जिघ्रन् सूंघते हुए, अस्नन् खाते हुए, गच्छन् चलते हुए, स्वपन सोते हुए, ये जो भी हम करते हैं इंद्रियों के विषय में प्रवृत्त है। मैं तो कुछ नहीं करता हूं, ना हम करता, हरि ही करता। एब्सेंस ऑफ डूअरशिप डज नॉट मीन इनएक्शन। हम लोग बोलते हैं अकर्तृत्व भाव, मतलब कुछ करना नहीं, ये नहीं है। भगवान बोलते हैं कि कर्म नहीं करेंगे तो अर्जुन तेरी शरीर यात्रा भी न चलेगी नहीं। शरीर यात्रा भी चते न प्रसिद्ध्येद अकर्मणः। और यहाँ 247 which is the master stroke of Bhagavad Gita, which says कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोत्स्व कर्मणि। कर्मणि एव अधिकारः ते। अर्जुन तेरा अधिकार कर्म में है। मां फलेषु कदाचन, मां इज नहीं, कर्म में फल में कभी भी नहीं। मां कर्म फल हेतुर्भुः, तू कर्म में फल का हेतु वाला मत बन। माते संगोत्स्व अकर्मणि, तेरा संग अकर्मे में भी नहीं हो। तुझे कर्म भी करना है, फल की अपेक्षा भी नहीं रखनी है। तेरा अधिकार जो है वो कर्म में है। और भगवान बोलते हैं 248 में, 247 के बाद, ये कर्मण्येवाधिकारस्ते के बाद, योगस्सः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। 248, योग में रहकर संग त्यज के कर्म कर, सिद्धि असिद्धि में समम भूत्वा, सम होके, समत्वम योग उच्यते। Equanimity is yoga. Samatvam is yoga. The equanimity is called yoga. That is what, Lord Krishna says. ये 4 चाबियां, कौन सी 4 चाबियां? कोई बोलेंगे 4 चाबियां? 4 keys for joyful life. संयोगों का सहज स्वीकार, दूसरा है संयोगों का सहज स्वीकार के बाद है दूसरी चाबी गुण ग्राहक स्वभाव,
अनिंदक स्वभाव और अकर्तृत्व भाव। अब मैं आपको बताता हूं पावर ऑफ गीता क्या है। मेरे जैसा मूड, हाँ, एक गांव का गवार लड़का भी आपके सामने 1 घंटा 1.5 घंटा बोल सकता हूं। ये द क्रेडिट गोस टू गीता। कैसे? अर्जुन जैसा अर्जुन, उसको कोई हरा नहीं सकता है। कितने युद्ध जीत के आए हैं, कभी हारा नहीं है। ऐसा इंसान सगे संबंधी को देख के विषाद में आ जाता है। तो 147 इज फर्स्ट चैप्टर 47 वर्स। उसमें अर्जुन की क्या हालत थी? संजय बोलते हैं, एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापम शोक संविघ्न मानसः। अर्जुन ने बोल दिया रणभूमि में, पहले तो युद्ध का डिसाइड हुआ, बाद में युद्ध करने का सब शंख भी सबने बजा दिए। उसके बाद में सबको देख के अर्जुन रथ के पीछे के भाग में बैठ जाता है। विसृज्य ससरं चापम, लीविंग असाइड हिज बो एंड एरोज, शोक संविघ्न मानसः, ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ, शोक से ग्रसित हो गया। ऐसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया, उसके बाद में पूछा कि अर्जुन तेरा मोह नष्ट हुआ? जो मैंने कहा वो तूने शांत चित्त से, एकाग्र चित्त से सुना? और ऐसा करने के बाद भी भगवान ने बोल दिया यथेच्छसि तथा कुरु, तेरी जो इच्छा है वो कर। तो पूछते हैं कि प्रणष्टस्ते धनंजय, तेरा जो मोह था वो नाश हुआ कि नहीं? तो अर्जुन 1873 में बोलते हैं, अर्जुन उवाच, क्या बोलते हैं? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहः, my delusion has gone away. स्मृतिर्लब्धा, my memory has come back. त्वत्प्रसादान्, with your grace, O Achyuta, O Krishna. स्थितोऽस्मि, स्थितोऽस्मि in Sanskrit means literally standing. And स्थितोऽस्मि also means I have become of stable mind. अब डिली डेली नहीं होगा। हम लोग भी डिली डेली होते हैं, ये करना है वो करना है। ये श्रीमद् भगवद गीता के पठन से, अध्ययन से, आचरण से पावर आ जाएगा। मोस्टली विल टेक डिसीजन, राइट डिसीजन, क्विक डिसीजन। गत संदेह, माय डाउट्स हैव वेनिस्ड, करिष्ये वचनम तव, आई विल डू व्हाटएवर यू से। दैट्स द पावर ऑफ गीता। A warrior like Arjun also can come into Vishad. Arjun is a representative man, my dear brothers and sisters. ये हमारा प्रतिनिधि है। अर्जुन तो नर नारायण है। उसके लिए महाभारत में जब स्टार्ट करते हैं तो महाभारत में व्यास नारायण से कि नरम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। जय का, जय महाराज भारत का नाम है जय। ये जय का अभ्यास करने का शुरू करते हैं तो नर और नारायण को नमस्कार करके, ये भी नर है अर्जुन भी, और नारायण कृष्ण भगवान हिमसेल्फ, तो ये वेरी एबल मैन ही वॉज। तो ये उनको तो विषाद नहीं होगा, पर हमारे लिए अर्जुन रिप्रेजेंटेटिव बना। हमारा भी लाइफ में ऐसे अनगिनत प्रसंग आते हैं जब हम उलझ जाते हैं। तो ये श्रीमद् भगवद गीता is a guide, you know, in all such conditions it will make us joy powerful, it will make us you know, take the right decision. There are other important points that I want to highlight in quick 5-10 minutes, so that if we want to keep it open for question answer, and I have told you if you have any question you can go on asking in between also. भगवान बोलते हैं prescribed duties, there are prescribed duties and there are prohibited duties in शास्त्रस। आगम बोलते हैं इनको। हाँ, उसमें विष्णु सहस्त्र नाम में भी आता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द महाभारत। आचार प्रभवो धर्मः, धर्मस्य प्रभुरच्युतः। आचार इस सदाचार। तो भगवान यहां अर्जुन को बोलते हैं नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः
तामस परिकीर्तितः, त्याग के भी सात्विक त्याग कौन सा है, राजसिक त्याग कौन है? तामस त्याग किसको बोलते हैं? 18:7 में भगवान बोलते हैं नियत कर्म, जिनका नियत कर्म है। एक गृहिणी का धर्म है गृह अच्छी तरह से रखना, अगर उसमें से नियत धर्म से चलित हो गई तो ये ठीक नहीं है। भगवान बोलते हैं मोह से उसका परित्याग करेंगे तो उसको तामस परित्याग कहता है। I may be a father, so as a father I have got some duty. I may be an employee somewhere, as an employee I have got some duty. I may be a husband, I have a duty as a husband. So all these नियत कर्म है मेरा, उसका त्याग नहीं करना है। ये भगवत गीता हमें सिखाती है। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। 18:9 में लॉर्ड कृष्णा सेज सात्विक त्याग कौन सा है? तो when actions are undertaken in response to duty and one relinquishes the attachment to any reward, oh Arjun, it is considered renunciation in the nature of goodness. Goodness is the translation of सात्विक, ये सात्विक त्याग है। कर्म सात्विक कौन सा है? तो बोलते नियतम, उसमें भी प्रिस्क्राइब्ड एक्शन, हमारे भाग में जो आया वो नियतम संग रहितम, अटैचमेंट के बिना किया हुआ कर्म। अराग द्वेषतः कृत, राग द्वेष के बिना किया हुआ। अफल प्रेप्सुना कर्म, और फल की आशा रखे बिना जो कर्म की करते हैं वो सात्विक कर्म बोलते हैं। यतद अग्रे विषमिव, मैंने बोला ना, वो भी भगवत गीता में बताया है। और दूसरा ध्यान रखना है भगवत गीता में, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मैंने बोला वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में सुख नहीं। ये 5 सेंस ऑर्गन है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें रममाण नहीं होना है। In 5:22 Lord Krishna says ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। The pleasures that arise from the contact with the sense objects, though appearing as enjoyable to the worldly minded people, they are verily the source of misery, O son of Kunti, O Kaunteya. Such pleasures have a beginning and an end. Adyantavantak Kaunteya, आदि और अंत वाले होते हैं। Nateshu ramate Buddha. Buddha is wise man. So wise do not delight in them. रममाण नहीं होते हैं उसमें। खाना खा लेते हैं, स्वीट पसंद है, खा लो भैया, पर उसमें रममाण मत हो। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध में। और काम क्रोध के again and again in various places Lord Krishna says, in 5:23 also says शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। काम और क्रोध का आवेग ऐसा होता है कि हम जिंदगी भर प्रयत्न करते हैं, उसमें से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये होना चाहिए, और क्रोध हो जाता है, नहीं होता है, हमारी धारणा की इच्छा अनुसार हम क्रोधित हो जाता है। काम एष क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उद्भव होता है। तो ये काम इज लस्ट डिजायर, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं रखना। अपना प्रयत्न करके छोड़ दो। The things which cannot be cured have to be endured, this is to be learned. If you can cure it, I must strive for it. शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात्। हम मृत्यु के पहले अगर काम और क्रोध को जो वेग है उसको रोकने के लिए सफल हो जाए तो वो योगी है, युक्त है। स सुखी नरः, he is a happy man, he is a joyful man. In last part I'll say, let us not do anything for which we have to repent later on. कोई ऐसा काम हमको नहीं करना चाहिए बाद में हम पछता है कि ये मैंने क्यों कर दिया। किसी का डर नहीं लगेगा, अभय हो जाएंगे, दैवी संपदा है अभय। And we must also remember that there are 14 witnesses in Mahabharata. दुष्यंत and शकुंतला की बात आती है। दुष्यंत was a great king.
शकुंतला was a daughter of Menka and Vishwamitra ऋषि। विश्वामित्र को का तप को से चलाईमान करने के लिए इंद्र ने अप्सराओं की अप्सरा मेनका को भेजी। मेनका अपनी योजना में सफल रही, विश्वामित्र का तपोभंग हुआ, उनके संभोग के कारण पुत्री हो गई, उनका नाम है शकुंतला। ये शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की बेटी, मतलब रूप गुण बुद्धि सब में अव्वल नंबर। और मेनका उनको छोड़ के चली गई तालाब के किनारे। क्यों चली गई? उनका काम हो गया। हाँ, मेरा काम तो इंद्र ने इसके लिए भेजा थी, मुझे विश्वामित्र को भी पता चल गया कि मेनका मुझे मेरा तपोभंग करके गई। विश्वामित्र भी तप करने के लिए चले गए। शकुंतला तालाब के किनारे पड़ी थी। शकुंत मतलब पक्षियों ने उनकी रक्षा की, तो उसके लिए उनका नाम शकुंतला हुआ। कण्व ऋषि वहां आए, पक्षी ने बोला, कण्व ऋषि पक्षी की भाषा भी जानते थे कि एक बायोलॉजिकल फादर जो जन्म देता है वो होता है और एक पालक पिता होता है। कण्व ऋषि, ये मेनका और विश्वामित्र की बेटी है, उनके आप पालक पिता हो जाइए। कण्व ऋषि आश्रम में ले गए, बड़ी हो गई। एक दिन दुष्यंत राजा बड़ा शक्तिशाली, बड़ा अच्छा राजा था, अकेला 2 सिंह को हरा दे ऐसी ताकत उसमें थी दुष्यंत की, और बहुत भला। वो आके कण्व ऋषि के आश्रम में आए, वहां शकुंतला अकेली थी। ऋषि फल लेने के लिए गए थे। दुष्यंत ने बोला, देख के बात करके खुश हो गया, मोहित हो गया, मुझे तुझसे शादी करनी है। बोले, मेरे पिताजी फल लेने के लिए गए, उसके पहले उनकी अनुमति से मैं सब कुछ करूंगा। बट दुष्यंत प्रिवेल्ड अपॉन, शी वाज आल्सो यंग, दोनों साथ में रह गए। फिर वो चला गया। दुष्यंत ने बोला कि आप जब भी मेरा राज्य है यहाँ आ जाना, हमारा गांधर्व विवाह हो गया, तू मेरी पत्नी है। बाद में एक बेटा हुआ, उनका नाम भरत, बड़ा हो गया। कण्व ऋषि को पता चला कि ये हो गया है। कण्व ऋषि ने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। पर कण्व ऋषि ने बोला कि बेटा आप तू जा, पिता के घर ज्यादा नहीं रहना चाहिए स्त्री को, तू अपने पति के घर जा। वहां शकुंतला गई। दुष्यंत दरबार में मंत्रियों के साथ बैठा था। शकुंतला ने बोला, मैं आपकी पत्नी शकुंतला हूं, ये आपका बेटा भरत है। भरत जिनके नाम से हमारा देश का नाम भारत पड़ा है। और दुष्यंत ने बोला, तू मेरी पत्नी नहीं है, तू झूठ बोल रही है, तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानता। फिर शकुंतला जो गुस्से में आई है, उसका पूरा वर्णन है, बहुत आनंदित करेगा। बट उसमें से मुझे 2 श्लोक, वो गुस्से हुई, उसने 2 श्लोक बताए। महर्षि वेद व्यास है ना, उन्होंने वेदांत भर के रखा है महाभारत में, सब पुराण में, सब ग्रंथ जो उनके द्वारा रचित है, उसमें से हमको जो अच्छा है सीखना है। हम लोग बात में चले जाते हैं, वो रूप के अंबार थी मेनका, और हम लोग उसमें से भी गलत ढूंढ रहते हैं, विवेक नहीं है तो हम बोलते हैं विश्वामित्र भी चलित हो गए तो हम भी चलित हो सकते हैं। नहीं होना है, क्या सीखना है। 2 श्लोक उन्होंने बताया, वो काफी है। मैं उसमें से 2 पसंद आ गया मुझे। शकुंतला बोलती है, वो हमको भी याद रखना है, और मैं जब भी याद रखता हूं, गलत काम कम होते हैं। हाँ, कम होते हैं, उससे आनंद ज्यादा बढ़ता है, अभय होता है, निर्भय होते हैं। शकुंतला टेल्स दुष्यंत कि आप झूठ बोलते हैं, आपके मस्तक के 100 टुकड़े होना चाहिए, सब भी बोलती है। पर शकुंतला ने बोला, मन्यते पापकम कृत्वा न कश्चित् वेत्ति मामिति विदन्ति चैनम देवाश्च यश्चैवान्तर पुरुषः। मन्यते पापकम कृत्वा, पाप करके लोग मानते हैं, न कश्चित् वेत्ति मामिति, मुझे कोई नहीं देखता है। विदन्ति च एनम देवाश्च, सब देव इनको जानते हैं। यह चैवान्तर पुरुष, हमारे अंदर बैठा हुआ पुरुष भगवान अंतर्यामी, वो भी जानता है। और फिर 14 साक्षी का नाम देती है शकुंतला। वो 14 साक्षी हमको भी याद रखना है। 24/7 into 365 they are there, they are watching us. Not only that, they know our thoughts also, all these 14 witnesses, and they never tell a lie. हम लोग यहाँ तो कुरान पे हाथ रख के गलत बोल सकते हैं,
वहां अगर एक साक्षी ने बता दिया, सूर्य देवता एक साक्षी है, उन्होंने बता दिया कि नीलेश सूचक ने ऐसी गलत सोच की थी, बाद में कोई जरूरत नहीं है यहाँ हाथ रखो वहां खत्म, कभी गलत नहीं बोलते। तो ये 14 साक्षी कौन है? आदित्य चंद्रावनिलानलौ च द्योर्भूमिरापोरुदयं यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च संध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम। नर का वृत्त जानते हैं आदित्य सूर्य भगवान, चंद्र इज चंद्र, अनिला इज वायु देवता, अनला इज अग्नि देवता, आदित्य चंद्रावनिलानलौ च, द्यो इज अंतरिक्ष स्वर्ग, भूमि, भूमि भी साक्षी है, भूमि को पता है कि नीलेश सूचक क्या सोचता है, क्या कर रहा है, सबका। द्यो भूमि राप, आप इस पानी, हमारे शरीर में भी 70% पानी है, 2/3 पानी है, ये पृथ्वी में भी देखो। द्यो भूमि रापो हृदयम, हमारा हृदय तो जानता है, पता है कि नीलेश सूचक गलत कर रहा है, लांच नहीं लेना चाहिए, तुझे पगार मिलता है गलत मत कर, पर मेरा मन बोलता है नहीं नहीं ले ले, पैसा मिल जाएगा। 2-3 बार हृदय देवता मुझे बोलेंगे, अंतर्यामी के सूचक ये मत करो नीलेश, ये गलत काम है, पर फिर मन कभी हावी हो जाता है तो मैं ले लेता हूं। फिर ये साक्षी तुरंत देख लिया, पकड़ लिया, नीलेश सूचक तूने गलत कर लिया, किसी ने नहीं देखा, पुलिस ने नहीं पकड़ा, सीबीआई वालों ने नहीं पकड़ा, ये साक्षी नोट हो गया। मेरे मन के विचार भी वो जानते हैं। द्यो भूमि रापो हृदयम यमस, और यम देवता, अहश्च रात्रिश्च, दिन रात, अह इज दिवस, रात्रि इज रात्रि, उभय च संध्या, दोनों संध्या सुबह शाम की, और धर्म 14वां साक्षी है। इनको हमेशा हमको याद रखना चाहिए, इनको याद रख के हम जो भी काम करेंगे तो हमसे गलत काम कम होते जाएंगे, लास्ट में ऐसा होगा कि कुछ गलत काम नहीं होंगे तो हमारे पास अभय आ जाएगा, ये एक दैवी संपदा है। इतना कह के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। अभी 8 मिनट और बाकी है। मैं लास्ट में सबके लिए मंगल कामना करके फिर आपको कोई प्रश्न है तो मैं आपका जवाब दूंगा। भूमि मंगलम भूमि मंगलम भूमि मंगलम भूमि मंगलम, उदक मंगलम उदक मंगलम उदक मंगलम उदक मंगलम, वायु मंगलम वायु मंगलम वायु मंगलम वायु मंगलम, अग्नि मंगलम अग्नि मंगलम अग्नि मंगलम अग्नि मंगलम, सूर्य मंगलम सूर्य मंगलम सूर्य मंगलम सूर्य मंगलम, मनो मंगलम मनो मंगलम मनो मंगलम मनो मंगलम, आत्म मंगलम आत्म मंगलम आत्म मंगलम आत्म मंगलम, गगन मंगलम गगन मंगलम गगन मंगलम गगन मंगलम, चंद्र मंगलम चंद्र मंगलम चंद्र मंगलम चंद्र मंगलम, सर्व मंगलम सर्व मंगलम सर्व मंगलम सर्व मंगलम, सर्व मंगलम भवतु भवतु भवतु, सर्व मंगलम भवतु भवतु भवतु, भवतु भवतु भवतु, भवतु भवतु भवतु, भवतु भवतु भवतु, भवतु भवतु भवतु। I bow down to all of you, all good listeners. I see one question here. Many clients get the work done. We do it in good faith, considering our duty, but they don't pay fees. How this Niskam Karma works? Good question. मैं भी पैसा लेता हूं अपने काम का, पहले बोल दो मैं इतना पैसा लूंगा। कोई क्लाइंट ऐसे नहीं देते हैं, आपको उसमें विश्वास, बोलो मेरा एडवांस आना चाहिए, मैं एडवांस भी लेता हूँ, मैं निष्काम कर्म की बात करता हूँ, बट बाद में जब मेरे पास एडवांस पैसा आ जाता है तो मेरी लायबिलिटी ऐसा समझता हूँ, उनको 10 दिन में काम हो सकता है, मैं उनको बोलता हूँ 15 दिन में आपकी अपील रेडी होगी, मैं कोशिश करूंगा, विद इन 15 days आई विल गिव यू, और मैं 10 दिन में दे देता हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन रहता है पहले पैसा लिया है। और कोई क्लाइंट फिर तो उनको पता चलता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो कहेगा वही करेगा, और ऐसे है तो हम ना बोल देते हैं। हाँ, कई बार होता है, पीछे पड़ना पड़ता है क्लाइंट को काम करने के बाद भी, फिर भी प्रयत्न करना उसके लिए। डोंगरे जी महाराज बोलते हैं पैसे कमाने के लिए प्रयत्न करने की छूट है, पाप करने की छूट नहीं है। हाँ, तो प्रयत्न करना,
फिर नया आए तो कभी बार ऐसा सोचना कि हम छूट गए, पिछले जन्म में हमने किसी के ले लिए होंगे तो ये जन्म में चुका दिया, अच्छा हो गया भैया, कोशिश करके फिर छोड़ दो तो खुशी हो जाएगी, खुशी हो जाएगी, नहीं तो दुखी होते रहेंगे। और याद है हमें भी, ओ 1985 में इन्होंने मुझे 5,000 नहीं दिया तो मैं दुखी रहता हूँ। अरे भाई मैंने भी किसी का लिया होगा तो इस बार चला गया। अब भगवान किसी का कर्म करने वाले को, धर्म करने वाले को अर्थ मिल ही जाता है, धर्म। हाँ, और सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थ चाहिए, आपकी बात सही है। अर्थस्य मूलम राज्यम, कुछ काम करना चाहिए, राज्य से मूलम इंद्रिय जय, ये सब नीति सूत्र है, अफोरिज्म्स ऑफ चाणक्य। एनीबॉडी एल्स? सर अप्रतिम अप्रतिम अप्रतिम, अगर यहाँ फिजिकल रहते तो स्टैंडिंग ओवेशन देते सब लोग। नमस्कार, आपने आपका शब्द सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई, ये आपने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दे दिया है, धन्यवाद। सर मैं यूजुअली ये वन वे इंटरेक्शन रहता है जूम पे, मगर मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अनम्यूट कर सकते हैं, हाथ रेस, हैंड रेस कीजिए, हम आपको अनम्यूट करेंगे और आप इंटरेक्शन कर पाएंगे सर से। बर्वे साहब बोलते हैं एक्शंस गिविंग बेनिफिट इन शॉर्ट टर्म but harmful in the long term are wrong actions, and good actions may be inconvenient in the short run but beneficial in the long run, but in practice it is difficult to decide what are good actions or what are wrong actions. अपना मन का भाव अच्छा रख के कोई भी काम करो तो कोई बुराई नहीं है, मन के भाव प्रदूषित नहीं होने चाहिए। मैं आपको बताऊं कि सैनिक, उनके मेजर का हुक्म आ जाए 100 लोगों को मार देता है, पाप नहीं लगता है, क्योंकि उनका भाव है ड्यूटी का। हाँ, तो हमारे यहाँ भी प्रैक्टिस में ये सब द्विधाएं आती रहती है। हम भी आपके जैसे ही हैं, हम भी टैक्स डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं, वो सब जगह रहने वाले हैं, उनका जिनका जो भाग में आया है वो लेना। हमको क्या करना है, हमारी ड्यूटी ठीक तरह से कर, हमारा जो मेहनत है उसके लिए बोल देना कि हम ये करेंगे, हाँ ये काम के लिए ये फीस लेंगे, और फिर फीस लेके उनको बोल दिया। बाद में ध्यान रखना 14 साक्षी है, 14 साक्षी को बोल के सब कुछ काम करने का कि भाई ये मेहनत का इतना पैसा हम लेने वाले हैं, और उसमें कोई 5-10 हजार कम करवाए, हमको इच्छा है तो हम ले ले। बाकी मैंने देखा है कि मोस्टली I today for 17 years I have started my office. Earlier I was doing my retainership. For 17 years on 31st March I have got a very small practice, but I am happy. Not a single payment is outstanding on any of the at the end of the financial year. 31st March का कोई बिल बाकी नहीं रहता है। देखो इतने साल 17 years मैं थोड़ा पीछे भी पड़ जाता हूँ, और मोस्टली तो उनको पीछे लग के पैसा आता है तभी बिल बनाता हूँ, और उसमें खुश रहता हूँ। और मुझे बहुत अच्छे क्लाइंट मिले हैं, अच्छे सब, और ये भगवत गीता का अध्ययन करने के बाद मुझे बड़ी खुशी होती है, आनंद बढ़ गया है। हाँ, दुख होने का प्रसंग कम होता है। तो बारवे साहब आप तो ज्ञानी हैं, कल भी आपको मैंने, कल में प्रेजेंट था, आपके बारे में भी सुना था, ये जय छेरा जी भी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। नमस्कार, और किसी को कुछ कहना है तो? सर बर्वे साहब अपने पास्ट सेंट्रल काउंसिल मेंबर रह चुके हैं। नमस्कार, नमस्कार। रेगुलेटरी में अपने जो रेगुलेशंस है आईसीआई के, ही इज अ रेगुलर स्पीकर। Very nice, very nice. So nice to have an interaction with him. एक राजकुमार जी का कंटिन्यूशन में क्वेश्चन है, अगर कोई क्लाइंट कम पैसा दे, हाँ जी सर, पैसों में काम करना चाहता है तो करना चाहिए या नहीं? हाँ, हम देखो, हम लोगों को the things which cannot be cured have to be endured, है ना। और दूसरा कि हमारे पास दूसरा क्लाइंट है, अच्छा पैसा दे रहा है, और इनको हमको ये ठीक नहीं लगता है, हमारे स्वभाव के अनुसार नहीं है, और तो छोड़ दो। पर मेरा खाना बंद हो जाता है, मेरी ऑफिस का खर्चा नहीं निकलेगा, तो इनको सहन कर लो। तितिक्षा तांत्रिक्षस्व, चिंता विलाप रहितम, तितिक्षा कर लो, और जहां पॉसिबल है हाथ जोड़ के प्यार से बोल दो, सर हमको ये पसंद नहीं,
आपका बड़ा शुक्रिया, आप हमारे साथ इतने साल रहे, हमको रोटी दी आपने, आपका बड़ा आभार मानता हूँ, बट सर हम अब नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऐसा हम बोल सकते हैं कि सर ये 1000 रुपये में हम रिटर्न नहीं भर सकते हैं, पहले भरता था क्योंकि वो समय था, अब मुझे 5000 लेना है सर, 10,000 लेना है, तो उधर दूसरे कम में लेते हैं, सर आप जा सकते हैं, हम नहीं आपको बोल सकते हैं, बट ये हमारा रेट है। प्यार से बोलो, प्रेम से बोलो, चाय पिला के बोलो, पानी पिला के बोलो, कुछ बात नहीं सर है। एक पर्सनल एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी सर, जी सर, गो अहेड। जो प्रोफेशन है हाँ जी, इसमें कहा जाता है कि पहले आपको सरस्वती को प्रसन्न करना है, जी लक्ष्मी जी ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, ये वो भी सही है, सही है। हमारे अगर जो वास्तविकता है हाँ जी, प्रैक्टिस में, लोग हाँ जी। लक्ष्मी के पीछे जाते हैं और सरस्वती को इग्नोर करते हैं। और कई लोग वो इकट्ठी भी कर लेते हैं। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि आप प्रयत्न करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा, बट वो नाशवंत उतना इतने दुख लेके आएंगे। न्याय चाणक्य से न्यायगतः अर्थः तद विपरीत अर्थाभास, न्याय से जो प्राप्त करते हैं वो अर्थ है, उसके विपरीत है वो अर्थ का आभास है। मेरे यहाँ 50 बंगला है, बट मैंने देखे एक हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 60 प्रॉपर्टीज है अहमदाबाद में, उनका बेटे मेरे पास पढ़ता था, मुझे वो बच्चा सही बता गया, बोले पिताजी हम लोग गोवा गए थे, वो घूमने के लिए गए ही नहीं, वो तो वहां दुखी थे क्योंकि एक बंगले एक मकान का किसी को किराया बंद हो गया है तो नया ढूंढना है, किसी का फोन आया इसको रिपेयर करवा दो, किसी का भाड़ा नहीं आया तो पापा चिल्लाते हैं कि यार ये भाड़ा भर दो नहीं तो बंद करवा दूंगा, तेरा फ्लैट खाली करवा दूंगा। ये तो पूरा दिन माहौल यही काम करके मेरे 60 बंगला लेके मैं क्या करूंगा भैया, तो मैं तो इसमें सुख नहीं समझता हूँ। आप लोग हम लोग क्या मेजर करते हैं, मेजर तो कैसे करते हैं कि इनके पास बहुत पैसे हैं, नहीं, वो कितना अच्छा दिल वाला है। और आप भी जिंदगी में कभी भी याद रखेंगे तो ऐसे लोग, हाँ ये बड़ा अच्छा इंसान है, हाँ, और कितने भी पैसे हैं तो आप उनको मान देंगे चाहे समाज में, क्योंकि वो पैसा वाला है, अंदर से आपको उनके लिए कोई नहीं है। हमारे यहाँ भोगी नहीं पूजे जाते हैं, त्यागी पूजे जाते हैं, आप हमेशा ध्यान रखना। उसका मतलब ये भी नहीं है कि पैसा नहीं कमाना है, पैसा तो कमाना है, पैसे के बिना संसार नहीं चलेगा, हाँ पैसा कमाना है, ध्यान रखो, कोशिश करो जितना हो सके। किसी का काम भगवान ने बोला है भगवत गीता में 9:22, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मेरी भजन करता है उनका योग क्षेम में वहन करता हूं। योग क्षेम मतलब, योग मतलब जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति, जो आपके पास नहीं है वो प्राप्त मिल जाएगा, और क्षेम मतलब जो प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा करना। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है, आप धर्म करेंगे अर्थ आएगा, अर्थ आएगा, आपकी जो लेजिटिमेट डिजायर है, कामना है, लेजिटिमेट आपका धर्म है, वो पूरा करने के लिए सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी। मैं आपको काफी इलस्ट्रेशन दे सकता हूं, इसके लिए लाइफ में हमको देखना है। हमारे यहाँ ये टाइम एक्सीड हो रहा है राजेश जी, हमारे यहाँ एक पंड्या साहब थे, तो पंड्या साहब 3 बेटियां हो गई, अच्छा पैसा मिला, मुंबई में प्रोफेसर हो गए। तो उनके एक दोस्त थे दर्शक मनुभाई पंचोली, वो गांव में कॉलेज चलाते हैं वल्लभीपुर के पास उसको, तो उन्होंने बोला पंड्या तू तो बोलता था गांव में रहना है, गांव में रहना है, क्यों वहां चला गया, आजा यहाँ आजा। तो बोले आप तो वहां पैसे भी कम दे रहे हैं, अभी मेरी 3 बेटियां हो गई, इनकी शादी कौन करेंगे, आप तो बोलते हैं आ जाओ यहाँ मुझे अच्छा पगार मिलता है, कौन करे। बोला आजा पंड्या, तेरी बेटी की सादगी से शादी कर देंगे, कुछ नहीं होगा। फिर उनको गांव से लगाव भी था और यहाँ चिंता भी था, फिर वो मान गया, आ गया। उनकी 3 बेटियां की, एक बेटा की, सबकी शादी हो गई शानदार सादगी से, और आज इतने खुशी हो। तो 84 ईयर पंड्या मुझे मिले, पंड्या साहब, तो मुझे बोलते हैं नीलेश सूचक, मुझे जीवन का इतना आनंद है कि वो जो मनुभाई पंचोली ने बोला था, आज मेरे सब संस्कारी बेटे बेटियां हुई और मुझे सब खुश है, मैं 84 में चल सकता हूँ, ये भगवान की कृपा है। मुझे अच्छा हुआ कि ये दर्शक साहब यहाँ लाए, मेरी इच्छा भी थी और मेरा जीवन भी ऐसे गया। तो ये जो अल्टीमेटली हम लोगों को संतोष मिलना है, किसी को देखने से हमको दुखी नहीं हो जाना चाहिए।
कि इनके पास इतने करोड़ रुपीस है, ये भगवत गीता का पठन और आचरण करेंगे, उसमें मुक्ति हो जाएगी। किसी का देख के द्वेष भी नहीं होगा, किसी का देख के मुझे खुशी होती है। हाँ, कि भले कोई भी कमाए, हम ऐसे भी निंदा भी नहीं करते हैं, ब्लैक में कमाए होंगे, ये करते होंगे, काले काम करते होंगे, ये भी नहीं सोचना है। जो करते वो करेंगे, वो भुगतेंगे, देख लेना। और हम अच्छे करेंगे तो हमको शांति रूपी पुरस्कार मिलेगा। ये कुदरत का कानून है, ये मैंने इतने साल में देखा है, ये मेरी श्रद्धा है। और कुछ सर आपकी? एक्सीलेंट। जी सर। सर बहुत लोग आज तक कहते आए, सुनते आए हैं, जी सर। गीता सर्वव्यापी है, जी। गीता में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जी सर। सर्वव्यापक है। आप छोटे बच्चों से लेके, छोटे इंडस्ट्री से लेके बड़े Yes. इंडस्ट्री तक, हर चीज उसमें, Yes, for everyone. हर प्रिंसिपल, हर विचार उसमें आपको मिलने वाला है। जी सर। और उसकी नींव आपने रखी है सर आज। Thank you. It जिस is a तरीके से manual आप- of life for everybody. Yes, yes. मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपने गीता को प्रोफेशनल लाइफ में किस तरीके से यूज करना चाहिए, या अपना प्रोफेशनल लाइफ किस तरह गीता में समाया हुआ है, आपने बहुत सुंदर, आपके शब्द में आपने उसको रचा है। पुणे ब्रांच की ओर से सर मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने आपका कीमती वक्त हमारे श्रोताओं को दिया, हमारे मेंबर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को दिया। यहाँ पे 25-30 लोग ही रहेंगे, मगर हम इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो YouTube पे अपलोड करके जो शेयर करेंगे, तो मुझे लगता है उसका बहुत ज्यादा लोगों को बेनिफिट होगा। और इसको हम प्रयत्न करेंगे कि मैक्सिमम लोग इसका लाभ उठाए। और मैं हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ पुणे ब्रांच की ओर से, कि उन्होंने पार्टिसिपेट करके एक्टिवली सहभाग लिया और अपना कीमती वक्त दे के अनुग्रहित किया हमें। सब बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपकी 7 मिनट मैंने ज्यादा ली है, धन्यवाद। नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।